जो दुनिया के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ वो कल हो गया। कल विश्व की राजनीति में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का दफ्तर व्हाइट हाउस, यहाँ पर दो देश के राष्ट्रपति आपस में भिड़ गए, वो भी कैमरे के सामने। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में ऐसी तीखी बहस हो गई, ऐसी जबरदस्त बहस हो गई कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। बात यहां तक पहुंच गई कि ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी और जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने तक को कह दिया और साथ ही साथ जेलेंस्की को धमकी भी दे डाली। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तीखी नोकझोंक के बाद पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह से जेलेंस्की ने ट्रंप को लगातार जवाब दिया और अपने देश के लिए खड़े रहे, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। और उसको देखते हुए पीएम मोदी भी एक बार फिर से सवालों की घेरे में आ गए कि जिस तरह से जेलेंस्की अपने देश का अपमान ना सहकर ट्रंप को लगातार जवाब देते रहे, उनसे बहस करते रहे, क्या ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते? क्या जिस वक्त मोदी जी के बगल में खड़े होकर ट्रंप भारत को लेकर कुछ भी बोल रहे थे, धमका रहे थे, तब क्या पीएम मोदी को उन्हें टोकना नहीं चाहिए था? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन क्या कह रहा है आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सब हुआ कैसे पहले वो बताती हूँ। दरअसल जेलेंस्की गए थे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के लिए, एक उम्मीद लेकर कि शायद कोई शांति समझौता हो जाए, क्योंकि ट्रंप इसी वादे के साथ आए कि वो वॉर रुकवा देंगे रूस और यूक्रेन के बीच। 40-42 मिनट के आसपास ये बातचीत जो है अच्छी चली, लेकिन आखिर के 10 मिनट में गर्मा गर्मी शुरू हुई जब ट्रंप के डिप्टी ने जेलेंस्की से ऊंची आवाज में बात करनी शुरू की। लेकिन जवाब में जेलेंस्की ने भी ताबड़तोड़ ट्रंप और उनके डिप्टी को जवाब देना शुरू कर दिया और बीच में कूद पड़े ट्रंप। और उसके बाद जो बहस शुरू हुई वो सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई और सुर्खियां बटोर गई। सुनिए पूरी बातचीत। Talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you You're think about? gambling What with do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. तो देखा आपने एक छोटा सा मुल्क जिसका आधा हिस्सा रूस के ने कब्जा कर लिया है, जिसके आधे हिस्से के खनिज पदार्थों पर अमेरिका की नजर है, लेकिन उसी देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ट्रंप को आंखें दिखाते रहे, ट्रंप को बार बार उंगली दिखाते रहे, ट्रंप की बात काटते रहे और उनको सच्चाई दिखाते रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को तब भी कुछ नहीं बोल पाए जब वो उनके साथ खड़े होकर भारत को धमका रहे थे, जब वो भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियों में डालकर भेज रहे थे। लेकिन मोदी जी
के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और जेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रंप को जवाब दिया वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। इस पर श्रीनिवास बीवी ने क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त उनके दादाजी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई बहस पर ट्रंप के समर्थन में दांत निपोर कर हंस रहे हैं, उनके अब्बा हुजूर भी यही कह रहे थे जब ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठाकर भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश बता रहा था और हमारे लोगों को ठूस कर वापस भेज रहा था, जबकि उन्हें ट्रंप के सामने इसका विरोध करना चाहिए था। जेलेंस्की ने वही किया जो किसी भी देश के स्वाभिमानी राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए था। अपने देश के हितों की बात, लड़ाई यूक्रेन रशिया के बीच है। ट्रंप की धमकियों से कोई देश सरेंडर कर दे, ये भला कैसे संभव है? सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, किसी देश के लोगों के स्वाभिमान से बढ़कर नहीं हो सकता। यही जेलेंस्की और हमारे वाले में अंतर है। तो ये जो है श्रीनिवास बीवी का कहना है कि जो है एक राष्ट्राध्यक्ष अपने देश का अपमान कैसे सह सकता है, इसीलिए जेलेंस्की ने जवाब दिया। और यही जेलेंस्की और पीएम मोदी में अंतर है कि पीएम मोदी किसी बात का जवाब नहीं देते, किसी बात पे रोक टोक नहीं करते, लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा किया। वहीं संजय सिंह ने कहा कि इस बातचीत ने साबित कर दिया कि ट्रंप दादागिरी पर उतारू है, इसीलिए मोदी जी को ट्रंप का पिछलग्गू बनने की बजाय भारतीयों को अपराधियों की तरह बेड़ियां बांधकर भारत लाने का मामला मजबूती से उठाना चाहिए। इसके अलावा ध्रुव राठी ने कहा कि अमेरिका के सॉफ्ट पावर का अंत है। ट्रंप और एलन मस्क ने अकेले ही देश को पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरेन ने कहा कि ये छोटे से देश का राष्ट्रपति जेलेंस्की है जो अपने लोगों के लिए ट्रंप से भिड़ गया, और एक वो है जो अपने लोगों को हथकड़ी में भेजे जाने को प्रोटोकॉल बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है आलोचना की गई है पीएम मोदी की कि एक छोटे से देश का राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से ट्रंप से भिड़ गया और पीएम मोदी जो है उसको प्रोटोकॉल बता रहे थे, जो यहाँ हमारे देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर भेजा गया, तो संसद के अंदर बता रहे थे कि ये तो प्रोटोकॉल है, हर देश के साथ होता है। वहीं पर जिस तरीके से जेलेंस्की ने अपने वो देश के लिए खड़े रहे, अपने स्वाभिमान के लिए वो खड़े रहे, उसको लेकर के पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार अब ट्रंप चाहते क्या हैं, किस तरह से वो हर देश के राष्ट्राध्यक्षों को धमका रहे हैं। वो उनका जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, और उनके इस रवैये को लेकर पूरे दुनिया में अब सवाल खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो आज हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज से पहले व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा वहां के पत्रकार भी कह रहे हैं कि ऐसा ना कभी देखा ना सुना कि इस तरीके से मीडिया के सामने इस तरीके की बहस जो है वो दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हुई हो। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, और ये जो रवैया जेलेंस्की ने दिखाया है और ट्रंप के रवैये पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।